लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाति अशहुरिन फ़इन फ़ाउ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। For those who vow abstinence from their wives, there is a respite of 4 months. Then, if they go back on their vow, they will find that Allah is all forgiving, all compassionate. और वो जो अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा बैठें, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। बस अगर इस मुद्दत में वो रजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वाइन आज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। And if they resolve on divorce, surely Allah is all hearing, all knowing. और अगर वो तलाक का पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासata क़ुरूइन वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बूलतुहुन्ना हक़्क़ु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल्मअरूफ़ि वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजत वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। Divorced women shall keep themselves in waiting for 3 menstrual courses, and it is unlawful for them, if they believe in Allah and the last day, to hide whatever Allah might have created in their wombs. Should their husbands desire reconciliation during this time, they are entitled to take them back into wedlock. Women have the same right against their men as men have against them, but men have a degree above them. Allah is all powerful, all wise. और तलाक वाली औरतें अपनी जानों को 3 हैज़ तक रोके रखें और उन्हें हलाल नहीं कि इसको छुपाएं जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा किया है, अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हैं और उनके शोहर उस मुद्दत के अंदर उन्हें फेर लेने का हक़ रखते हैं, अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हों। और औरतों के लिए भी मर्दों पर शरीयत के मुताबिक ऐसे ही हक़ है जैसा उनका औरतों पर है, और मर्दों को उन पर फजीलत हासिल है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Divorce can be pronounced twice, then either honorable retention or kindly release should follow. While dissolving the marriage tie, it is unlawful for you to take back anything of what you have given to your wives, unless both fear that they may not be able to keep within the bounds set by Allah. Then, if they fear that they might not be able to keep within the bounds set by Allah, there is no blame upon them for what the wife might give away of her property to become released from the marriage tie. These are the bounds set by Allah. Don't transgress them. Those of you who transgress the bounds set by Allah are indeed the wrongdoers. तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है या अच्छे तरीके से छोड़ देना है, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुमने जो कुछ औरतों को दिया हो इसमें से कुछ वापस लो, मगर उस सूरत में कि दोनों को अंदेशा हो कि वो अल्लाह की हदें कायम ना रख सकेंगे। तो अगर तुम्हें खौफ हो कि मियाँ बीवी अल्लाह की हदों को कायम ना कर सकेंगे तो उन पर उस माली मुआवजे में कुछ गुनाह नहीं जो औरत बदले में देकर छुटकारा हासिल कर ले। ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून. Then if he divorces her for the 3rd time after having pronounced the divorce twice, she shall not be lawful to him unless she first takes another man for a husband, and he divorces her. There is no blame upon them if both of them return to one another thereafter, provided they think that they will be able to keep within the bounds set by Allah. These are the bounds of Allah which He makes clear to a people who have knowledge of the consequences of violating those bounds.
फिर अगर शोहर बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो अब वो औरत उसके लिए हलाल ना होगी जब तक दूसरे खावन से निकाह ना करे। फिर वो दूसरा शोहर अगर उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर एक दूसरे की तरफ लौट आने में कुछ गुनाह नहीं, अगर वो ये समझें कि अब अल्लाह की हदों को कायम रख लेंगे और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वो दानिशमंदों के लिए बयान करता है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फबलग़न अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़िन वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। And so when you divorce women and they reach the end of their waiting term, then either retain them in a fair manner or let them go in a fair manner, and don't retain them to their hurt or by way of transgression. Whosoever will do that will indeed wrong himself. Do not take the signs of Allah in jest, and remember Allah's favor upon you. He exhorts you to revere the book and the wisdom that He has sent down upon you. Fear Allah and know well that Allah has full knowledge of everything. और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत की एहतदामी मुद्दत के करीब तक पहुँच जाएँ तो उस वक्त उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से छोड़ दो और उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए ना रोक रखो ताकि तुम उन पर ज़्यादती करो, और जो ऐसा करे तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया। और अल्लाह की आयतों को ठट्ठा मजाक ना बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो, और उसने तुम पर जो किताब और हिकमत उतारी है उसे याद करो। उसके ज़रिए वो तुम्हें नसीहत फरमाता है, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़न अजलहुन्ना फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमअरूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। When you divorce women and they have completed their waiting term, don't hinder them from marrying other men if they have agreed to this in a fair manner. That is an admonition to every one of you who believes in Allah and the last day. That is a cleaner and purer way for you, for Allah knows whereas you don't know. और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाए तो ए औरतों के वालियों, इन्हें अपने शोहरों से निकाह करने से ना रोको जबकि आपस में शरीयत के मुवाफिक रजामंद हो जाएं। ये नसीहत उसे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा काम है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल्वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रदाअ वअलल मौलूदि लहु रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिलमअरूफ़ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुदर्रा वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही वअलल वारिसि मिस्लु ज़ालिका फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाहा अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिऊ औलादकुम फ़ला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमअरूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। If they, that is the fathers, wish that the period of suckling for their children be completed, mothers may suckle their children for 2 whole years. In such a case, it is incumbent upon him who has begotten the child to provide them, that is, divorced women, their sustenance and clothing in a fair manner. But none shall be burdened with more than he is able to bear, neither shall a mother suffer because of her child, nor shall the father be made to suffer because he has begotten him. The same duty toward the suckling mother rests upon the heir as upon him that is the father, and if both the parents decide by mutual consent and consultation to wean the child, there is no blame on them if you decide to have other women suckle your children. There is no blame upon you provided you hand over its compensation in a fair manner. Fear Allah and know well that Allah sees all that you do.
और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे और बच्चे के बाप पर रवाज के मुताबिक औरतों के खाने और पहनने की जिम्मेदारी है। किसी जान पर उतना ही बोझ रखा जाएगा जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ ना दी जाए और ना बाप को जाए, और जो बाप का कायम मुकाम है उस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ बाप दोनों आपस की रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दूसरी औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई मज़ायका नहीं, जबकि जो मुआवजा देना तुमने मुकर्रर किया हो वो भलाई के साथ अदा करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्न फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। The wives of men who have died must observe a waiting period of 4 months and 10 days. When they have reached the end of the waiting term, there is no blame upon you regarding what they may do with themselves in a fair manner. Allah is well aware of what you do. और तुम में से जो मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें। तो जब वो अपनी एहततामी मुद्दत को पहुंच जाएं तो ए वालियो, तुम पर उस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामला में शरीयत के मुताबिक कर लें, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। वला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रतुम बिही मिन हितमतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुआइदूहुन्न सिररन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा वला ताज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताब अजलहु वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अन्फुसिकुम फ़हज़रूहु वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। There is no blame upon you whether you hint a marriage proposal to such women or keep the proposal hidden in your hearts. Allah knows that you will think of them in that connection. But don't make any secret engagement with them and speak openly in an honorable manner. Don't resolve on the marriage tie until the ordained term has come to its end. Know well that Allah knows even what is in your hearts. So have fear of him and know well that Allah is all forgiving, all forbearing. और तुम पर उस बात में कोई गुनाह नहीं जो इशारे कुनाए से तुम औरतों को निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह को मालूम है कि अब तुम उनका तज़किरा करोगे, लेकिन उनसे खुफिया वादा ना कर रखो, मगर ये कि शरीयत के मुताबिक कोई बात कह लो और अक़दे निकाह को पुख्ता ना करना जब तक इद्दत का लिखा हुआ हुक्म अपनी एहततामी मुद्दत को ना पहुँच जाए। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है, तो उससे डरो और जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला हलम वाला है। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ़रीदू लहुन्ना फ़रीदतन व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसी क़दरुहु व अलल मुक़्तिरी क़दरुहु मताअन बिल मअरूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। There is no blame upon you if you divorce your wives before you have touched them or settled the bridal gift upon them. But even in this case, you should make some provision for them, the affluent according to his means, the strained according to his means. Provision in fair manner, that is a duty upon the good words. अगर तुम औरतों को तलाक दे दो तो जब तक तुमने उनको छुआ ना हो या कोई महर ना मुकर्रर कर लिया हो तब तक तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, और इनको एक जोड़ा बरतने को दो, मालदार पर उसकी ताकत के मुताबिक और तंग दस्त पर उसकी ताकत के मुताबिक देना लाजिम है। शरी दस्तूर के मुताबिक इन्हें फ़ायदा पहुँचाओ, ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। And if you divorce them before you touch them or settle a bridal gift upon them,
then give them half of what you have settled, unless either the women act leniently and forgo their claim, or he in whose hand in the marriage tie act leniently and pays the full amount if you act leniently. It is closer to God fearing, and forget not to act gracefully with one another, for indeed Allah sees all that you do. और अगर तुम औरतों को उन्हें छूने से पहले तलाक दे दो और तुम उनके लिए कुछ महर भी मुकर्रर कर चुके हो, तो जितना तुमने मुकर्रर किया था उसका आधा वाजिब है, मगर ये कि औरतें कुछ महर माफ़ कर दें या वो शोहर ज़्यादा दे दें जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। और ए मर्दो, तुम्हारा ज़्यादा देना परहेज़गारी के ज़्यादा नज़दीक है, और आपस में एक दूसरे पर एहसान करना ना भूलो, बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Be watchful over the prayers and over praying with the utmost excellence, and stand before Allah as would utterly obedient servants. तमाम नमाज़ों की पाबंदी करो और खसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हजूर अदब से खड़े हुआ करो। फ़इन हिफ्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून. And even if you face a state of fear, still perform the prayer whether on foot or riding. And when you are secure, remember Allah in the manner that He taught you, the manner that you did not know earlier. फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो। फिर जब हालत इत्मीनान में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम ना जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राजिन फ़इन हरजन फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़िन वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम. Those of you who die leaving behind your wives should make testament of 1 year provision without expulsion in favor of your wives. And if they themselves depart, there shall be no blame upon you for what they may do with themselves in an honorable manner. Allah is almighty, all wise. और जो तुम में मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए इन्हें घरों से निकाले बगैर साल भर तक खर्चा देने की वसीयत कर जाएं। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर उस मामले में कोई गिरफ्त नहीं, जो वो अपने बारे में शरीयत के मुताबिक करें, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है।